Good evening, friends. Good evening. I'm good, thank you. कल का टॉपिक क्या, my friends? Okay, did you revise? Yes. Okay, कोई doubts? Nothing. Good. Now we are starting today with Union Executive, my friends, right? And Union Executive, में today we are starting with the President of India. Okay. I hope. अच्छा, friends. Thank you, Bhaskar. Thank you. Hello, Aishwarya. Hello, everyone. बच्चा, everyone सुनो मेरे बात. Okay. My old students, they have already done Union Executive, Union Legislative with me. Yes, Naman, you can mention criminal procedure. Whatever I write, everything you can mention. Okay. Friends, listen. बड़े ध्यान से सुन लो. मेरे previous students ने Union Executive पूरा का पूरा किया हुआ है, right? मैं एक pure option दे रहा हूँ. Okay. I'm going to repeat exactly the same thing. अगर आपको join करना है, you're most welcome. Revise करना है, most welcome. छोड़ के जाना है, most welcome. Okay. Choice is yours, right? It will be complete exactly, almost word by word completion. Okay. All right, Madhya. Size of marker. Size of marker. Size of marker is in this marker. Okay, cool. All right, I'll do that. All right. So if you can, what did I say? Yes, मेरे previous students, अगर तुमने revise करना है, right? Most welcome. अगर time waste लग रहा है, okay? Choice is yours. Okay, complete choice is yours. Okay, don't expect anything new. Exactly same ही होगा जो ऐसा पहले हुआ था. All okay? Right? Choice is yours, right? Either ways, more the merrier. ठीक है? आज का टॉपिक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. I'm happy, Shaipal. I'm happy. Okay. Choice is yours, Neelam. Absolutely. Your choice. Okay. I'll be happy to see you all, and I'll be happy. जो ऐसा आपका decision, आपकी मर्जी सर आंखों पे. Okay. All right. Now, so we have the president of India. आज का टॉपिक. Okay. Let's start this part. अपना lecture, अपना register खोल लो. Right. Let's get down straight to business. Right. टॉपिक लंबा चौड़ा है. Okay. पूरा का पूरा टाइम लग जाएगा. So pay attention to this very, 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 very carefully. At the end of this class, okay, तुम्हें president साहब से ज़्यादा मालूम होगा. Okay, I promise you that part. Okay, understand this. Pay attention. सब लोग आराम से relax हो जाओ. Okay, कुछ भी मत लिखो. Okay, जब तक मैं पूछूंगा नहीं, सिर्फ 2 ही आंसर देना. Yes या no. Right? और कोई आंसर देने की जरूरत नहीं. Right? Now, when I start with the Constitution of India, okay, when I start with the Constitution of India, अभी नंबर start नहीं हुआ, doubt आ गया? पूछ लो बेटा. पूछो. पूछो बेटा, जल्दी से पूछो. कलेक्टिव टाइम है बेटा. So which writ is known as postmortem? बेटा ऐसे कोई वर्ड्स ना अगर आपको यूज करने हैं ना एग्जाम में, कभी यूज करना मत इसको. ओके. वो पोस्टमार्टम नहीं होता, उसको क्यूरेटिव बोलते हैं. राइट. दैट इज सर्शियोररी जिसको बोलते हैं. ओके. उसको ऐसे वर्ड्स यूज करना मत कभी एग्जाम में. ओके. उड़ा देंगे वो तुम्हें एग्जाम में. ये बिल्कुल वो चीप से कॉलेजेस में होते हैं, वो बिल्कुल तब ऐसे से वर्ड्स यूज करते हैं माय फ्रेंड्स. ओके. इट इज नॉट अ पोस्टमार्टम, इट इज अ क्योर. राइट. सो ऐसा मत किया करो. राइट. आइदर वेज. ओके. बट अगर whichever is using it, it's very sad actually. Okay, but just for you, because आपने पूछा है, it is certiorari. Okay, for those of you, हम लोगों ने एक word use किया था, prevention is better than cure. अगर तुम्हें वो line याद है तो. Okay, तो ये वहाँ से आता है. I don't know why. I'm sometimes surprised at ये state level exams के ऐसे questions पूछते क्यों हैं. Okay, I don't understand. ऐसा कहीं भी use नहीं करते ये, but ठीक है तो है. चलो, fair enough. Okay. बेटा हमारे सुप्रीम कोर्ट में ना इतना अच्छा काम हो रहा है, इतना अच्छा इंटरप्रिटेशन हो रहा है लॉ का. ओके. वी आर क्रिएटिंग न्यू थिंग्स. राइट. एंड देन उसके बाद हाँ, आज तो बेइज्जती होगी. चल छोड़, जो को जाने दो. ऑलराइट एवरीवन, पे अटेंशन. छोड़ यार, कोई बात नहीं. ऑल इज गुड. ठीक है ना. वो एक बात है ना, कुछ वो ना, एक बहुत अच्छा गालिब साहब ने शेर बोला था ना, मुझसे ना पूछ मेरे दिल की कहानी हमदम, इसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं. ओके. सो क्वाइटली. ओके. कोर्ट की बात है कोर्ट में. ऑलराइट. सो understand this one. Now listen everyone. Alright, let's get down to business now. So we are looking at Article 52. Article 52 says there shall be a president of India. Crucial word, every word.
there shall be a president of India. मतलब सर, नंबर वन सर, इट इज अ मैंडेटरी ऑफिस. मैंने क्या बोला? इट इज अ मैंडेटरी ऑफिस, ये ऑब्लिगेशन है. ओके, सो देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ऐसा तुम नहीं सोच सकते कि ऐसे करो सर, इस साल प्रेसिडेंट बनाओ मत. नो, इट इज अ मैंडेटरी ऑफिस, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. Article 52 it therefore starts with what is called as union executive, और इस union executive में first mandatory office is the president of India. इस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साहब के लिए हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स बनाए हैं. ओके, प्लीज कंटिन्यूसली नोट्स बनाते जाना, कंटिन्यूसली बैठने मत रहना, टाइम पास मत करना. बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हमारे प्रेसिडेंट साहब के लिए. इनको बोला जाता है ऑफिस ऑफ सेरेमनी. ओके, इनको बोला जाता है द हेड एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया. ओके, इनको बोला जाता है द फॉर्मल हेड. बेटा मैंने ना किसी से नहीं पूछा, ठीक है, कृपा करो, मुझे मालूम है आप सब लोग टॉपर्स हो, कुछ भी मत पूछो, कुछ भी कमेंट्स में मत डालो, प्लीज सब छोड़ दो. मैं मान गया तुम सब जॉइंट टॉपर्स हो, मुझे कोई टेंशन नहीं, प्लीज छोड़ दो यार. इट कंफ्यूजेस द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. ओके, आई कैन नॉट लेट दैट हैपन, प्लीज. ठीक है, छोड़ दो, सब लोग जॉइंट हो, मुझे मालूम है. कृपा करके वो छोटे मोटे हो वो ऐसा मत डालो, पटाखे मत बजाओ, एटम बॉम्ब फटने वाला है यहाँ पे. ओके, आराम से सुनो. ओके, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं तुम्हारी बात में. ऑलराइट, नाउ लिसन. So you have office of ceremony, you have head executive, you have formal head executive. Okay, you have formal head executive. Okay, you have called as the ceremonial head of India. You have the ceremonial head of India. Okay, ये सारे के सारे नाम हमारे प्रेसिडेंट साहब के. और सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्चुअली टेक्निकल नाम है वो इज दैट ही इज द हेड ऑफ द स्टेट. ओके, इन इंडिया प्लीज अंडरस्टैंड, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये सारे, देखो मैं कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ, इसको ऑब्जर्व करो. ओके, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट इज दैट हेड ऑफ द स्टेट अलग होगा और हेड ऑफ द गवर्नमेंट अलग होगा. हमारा हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर. ओके, और हमारे हेड ऑफ द स्टेट होते हैं प्रेसिडेंट. सर ये तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ना बेटा. अमेरिका जाओ, अमेरिका में मिलेगा प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में तुम्हें डोनाल्ड ट्रंप मिलेगा जो दोनों हेड ऑफ द स्टेट भी हैं और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है. आर यू अंडरस्टैंडिंग अ पॉइंट? ह्यूज डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी. इस तरह से तुम्हें कनेक्शन आना चाहिए. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, किसी को मजा नहीं आ रहा ये सब पूछने के लिए, हेड एग्जीक्यूटिव, फॉर्मल हेड एग्जीक्यूटिव. ओके, मेरा बेटा 7th स्टैंडर्ड में, उसको भी आता है ये, राइट? उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसको ये नहीं मालूम है लेकिन कि अमेरिका में और हमारे में जो डेमोक्रेटिक मॉडल है उसमें ये डिफरेंस नोटिस हो जाता है. ये मेरे आईएएस एस्पिरेंट स्टूडेंट्स को मालूम होना चाहिए. ओके, दैट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हेड ऑफ द गवर्नमेंट और हेड ऑफ द स्टेट अलग होना चाहिए, एंड प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट एक ही आदमी होता है, डोनाल्ड ट्रंप. आर यू अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड्स? ओके, अब हर क्वेश्चन के आंसर. सर ये जो आपने इतना कुछ बोल दिया इसका फायदा क्या है? सो पहला वर्ड हेड एग्जीक्यूटिव या फिर फॉर्मल हेड एग्जीक्यूटिव. फॉर्मेलिटी समझते हो? फॉर्मेलिटी, ओके, फॉर्मेलिटी है. ओके, इन अदर वर्ड्स, करेंगे हम, करवाएंगे आपके हाथ से. करेंगे हम, करवाएंगे आपके हाथ से. व्हाट डज दैट मीन? ऑल द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट, all the actions of the government, ये बोलते हो जाओ, all the actions of the government are formally done in the name of the president. Say the word, in the name of the president. इसीलिए इनको एक और नाम मिलता है, इनको बोला जाता है द नॉमिनल हेड एग्जीक्यूटिव. क्या बोला जाता है? नॉमिनल हेड एग्जीक्यूटिव. तो जो भी हम इनको टाइटल्स दे रहे हैं वो किसी वजह से दे रहे हैं. तो डिसाइड मोदी जी करेंगे लेकिन साइन, ओके, सिग्नेटरी रामनाथ कोविंद साहब होंगे. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट पार्ट? एक्शंस प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं बिकॉज ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. इसलिए हेड ऑफ द गवर्नमेंट को बोला जाता है द रियल हेड एग्जीक्यूटिव. अरे वाह! सो देयर इज अ रियल हेड एग्जीक्यूटिव जिनके पास एक्चुअली पावर्स है, लेकिन जिनका नाम लेना है, जिनके थ्रू करवाना है, वो है हमारे प्रेसिडेंट साहब. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट एवरीवन? So the all, ये लाइन लिखते जाओ, अपने आप आता जाएगा. All the actions of the government are done in the name of the president. Okay, इसीलिए वो केवल एक सेरेमोनियल हेड है. ओके, वो नाम मात्र, वो ओनली नेम सेक वो हमारे हेड है. ही इज द हेड एग्जीक्यूटिव, ही इज द फॉर्मल हेड एग्जीक्यूटिव, ही इज द सेरेमोनियल हेड. सिर्फ जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस अभी के लिए हम याद रखें कि वो हेड ऑफ द स्टेट है और प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे हेड ऑफ द गवर्नमेंट है. This is the crucial difference between parliamentary democracy and presidential democracy. Are we clear or not? Yes or no? Yes or no? Yes, 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 yes. Clear? Cool. अब सुनो सर, आपने इतने सारे बातें बोली कि आपको कैसे पता? ओके, आपको कौन बता रहा है वाली बात? ओके, आपको ये कौन बता रहा है? बेटा मैं नहीं बता रहा. ओके, this is given in Article 53. Alright, Gorage, don't call my lords. My lords are only for judiciary, my friends.
ओके, माय लॉर्ड बोलोगे आर्टिकल 18 लग जाएगा। ओके, ऑलराइट, माय लॉर्ड्स और माय लॉर्ड्स एंड फ्रेंड्स, ओके, ऑलराइट, ऑलराइट माय फ्रेंड्स, आर्टिकल 53, वेरी गुड सर। सर आपने आर्टिकल 53 से पढ़ा? हाँ, अब सुनो मेरी बात। व्हाट इज आर्टिकल 53 से? ध्यान से सुनना, सब कुछ क्लियर आ जाएगा। ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट, मैंने क्या बोला? मैंने बोला ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट। मैंने लेजिस्लेटिव पावर्स बोला? नहीं बोला। मैंने क्या बोला? ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट shall be vested in the president. Say the word, shall be vested in the president. Shall be vested in the president? Yes, all the executive powers of the state shall be vested in the president. सर इसी को तो मैं प्यार से हेड एग्जीक्यूटिव बोल रहा था। ओके, इसी बात से तो मैं इनको बोल रहा था कि आप हेड एग्जीक्यूटिव हो, आप फॉर्मल हो तो, लेकिन आप हो तो हेड एग्जीक्यूटिव। इसी बेसिस पे मैं बोल रहा था आप हेड ऑफ द स्टेट हो, राइट? तो मैंने कहां से पढ़ा था? आर्टिकल 53 में। पर सर आपने फिर एक और बात बोली, आपने बोला कि ये खुद तो कुछ कर नहीं रहे, ओके, ये प्राइम मिनिस्टर साहब से करा रहे। ये आपको किसने बोला? बेटा मैं कौन होता बोलने वाला? मैं पूरी लाइन पढ़ देता हूं, तुम खुद ही समझ जाओ। All the executive powers of the state shall be vested in the president, who shall exercise them, either directly, either directly or through officers subordinate through him. Say the word, or through officers subordinate to him. Are you understanding? मैं क्या बोल रहा हूँ? बोलते हुए जाओ। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन समझोगे, बाकी सब तुम्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं हिला पाएगी। ओके, कोई कंफ्यूजन पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज़ दिस इज द रियल सोर्स, राइट? तो वर्ड क्या है? मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, हु शैल एक्सरसाइज देम आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम। सर ये डायरेक्टली तो समझ में आ गया, ये ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम में कौन कौन आएगा? ये ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम shall include the Union Council of Ministers to be headed by the Prime Minister. Shall include मतलब powers मेरे पास है, लेकिन either he will exercise them directly or through officers subordinate to him, जिसमें आ जाते हैं the Union Council of Ministers to be headed by the Prime Minister। ये तुम्हारे नोट्स में आते रहना चाहिए। ओके, एक मिनट भी रुकना मत। ओके, पेन चला के रखो। यस सर, ये यूनियन काउंसिल मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं मेंशन होंगे। ऑब्वियसली बेटा, मैं जो कुछ भी हम बात करेंगे वो कहीं ना कहीं होंगे। तो ऐसे करते हैं, थोड़ी देर के लिए यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। और यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे फ्रॉम आर्टिकल 74। कहां से पढ़ेंगे? फ्रॉम आर्टिकल 74 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, सो आर्टिकल 74 को हमें रीड करना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड द रियल इंप्लीकेशंस ऑफ आर्टिकल 53, क्योंकि आर्टिकल 53 में कहीं ना कहीं कनेक्शन टू आर्टिकल 74 दिख रहा है। यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं फ्रेंड्स? समझ में आ रहा है कि नहीं? कैन वी कनेक्ट द टू डॉट्स? चलो जी, तो ऐसे करते हैं। अब आर्टिकल 74 पढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनो मैं जो बोल रहा हूं। ओके, सो आर्टिकल लैंग्वेज समझना। ओके, आर्टिकल 74 सेज देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसको यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलते हैं, टू बी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, टू बी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। यहां तक समझ में आ गया? तो सर ये तो आपने वहां पे भी लिखा था, इतना टाइम वेस्ट क्यों किया आपने? इसलिए किया क्योंकि पूरी लाइन यहाँ पे है। अब इसका काम क्या है? Who at the headed by the prime minister to aid and advise, सुनते जाओ मेरी लैंग्वेज माय फ्रेंड्स, पकड़ लेना मुझे। To aid and advise the president, okay, in the exercise of his functions. Okay, मैंने क्या बोला? In the exercise of his functions। यार बिल्कुल ना अनइमोशनली पढ़ना। ओके, मेरे लिए मत बोलना, और दिमाग तो बिल्कुल यूज मत करना। ओके, जो तुम्हारी बेसिक प्रीवियस नॉलेज है सिर्फ ये पढ़ो। देयर शैल बी अ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू बी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ओके, whose duty is to aid and advise the president in the exercise of his function। नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज पे कंट्रोल है, तो तुम्हें इतना तो समझ में आ जाएगा। कहीं से भी लग रहा है क्या? एक बार भी लग रहा है, ऐसा लग रहा है क्या कि जो ये यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस है, ये प्रेसिडेंट साहब को माननी ही पड़ेगी? ऐसा लग रहा है इस लैंग्वेज से? नहीं लग रहा। किसको यस लगा? ओके, जिसको यस लगा वो बहुत ही इमोशनली प्राइम मिनिस्टर के फेवर में। ओके,
There shall be a union council of ministers to be headed by the prime minister to aid and advise. भाई ऐसा लग रहा है कि तुम हो, तुम्हारा काम है हमें एड एंड एडवाइस करना, काम तो मैं ही कर रहा हूँ. Yes or no? मैडम इंदिरा गांधी को ये बात अच्छी नहीं लगी. Okay? इंदिरा गांधी मैडम को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी. Okay? तो इंदिरा गांधी मैडम ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इसको चेंज कर दिया. Okay? So it was amended in the 42nd Constitutional Amendment Act 1976. और इन्होंने लैंग्वेज कर दी, there shall be a union council of ministers to be headed by the prime minister to aid and advise the president, who shall, okay, in the exercise of his functions, act in accordance with such an advice. Logic. Are you understanding? Okay. अब तुम्हें लग रहा है माय फ्रेंड्स कि ये बाइंडिंग होगी? यस. तो भाई हम है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू बी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. हम देंगे आपको प्रेसिडेंट साहब एड एंड एडवाइस, और कृपा करके यू शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एन एडवाइस. कांग्रेचुलेशंस प्रेसिडेंट साहब, द एड एंड एडवाइस हैज बिकम बाइंडिंग ऑन यू. Are you understanding? तो तुम्हें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ सकता है. The question that can come is that the original Constitution of India never planned that this should be binding advice. Okay, never. It was only the 42nd Constitutional Amendment Act 1976 जिसने इसको binding बना दिया. Are you understanding this part or not? Yes or no? अब तुम लोग है ना, सब लोग यू नो मैडम इंदिरा गांधी के पीछे पड़े हुए. ओके, सिर्फ इंदिरा गांधी खराब है. ओके, और कोई नहीं खराब होता. ओके, सब खराब होते बेटा, वक्त की बात है. यस और नो? सो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 came. So 44. Kavita, what happened? अच्छा, English language. There shall be a union council of ministers to be headed by the prime minister to aid and advise the president in exercise of his functions. From here to here was the original constitution. Madam Indira Gandhi has added the red portion. Who shall act in accordance with such an advice, right? In other words, that the 42nd amendment made it binding on the president. But now, Madam Indira Gandhi is not the only one. Okay, when the 44th Constitutional Amendment Act 1978 was passed, okay, so Morarji Desai became the prime minister. Agar you have read something about the 44th amendment, अगर आपने 44th amendment के बारे में पढ़ा है, तो आपको realize होगा that majority of the purpose of 44th amendment was to change or rectify, to correct the 42nd amendment. Okay, जहां 42nd ने गड़बड़ किया, उसको ठीक करने का काम था 44th का. तो सर, अगर मोरारजी देसाई साहब चाहते तो ये बाइंडिंग इफेक्ट को रिवर्स कर सकते थे. यस और नो? बट नो, ऐसा थोड़ा किया. उन्होंने सिर्फ एक स्टेप ऐड किया. उन्होंने किया दैट द प्रेसिडेंट में आस्क the Union Council of Ministers to reconsider such an advice. Say the word, to reconsider such an advice. But after this reconsideration, okay, एक बार reconsideration होने के बाद, एक ही बार reconsider करेंगे, उसके बाद again अगर वो advice आई तो it is binding. In other words, the president can only ask the Union Council of Ministers to reconsider the advice once. If the president ने भेजा for reconsideration and the Union Council of Ministers ने reconsider किया और उसको दोबारा भेज दिया, प्रेसिडेंट साहब ये आपके लिए बाइंडिंग हो जाएगा. पिक्चर क्लियर हो गया है या नहीं? A beautiful question can come on this part. Trace the change of dynamics between the president and the prime minister. Okay, between the president and the prime minister from the original constitution till the 44th amendment. Are you understanding this part? सबको समझ में आया या नहीं? याद रखना, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में बाइंडिंग नहीं था, 42nd में कंप्लीटली बाइंडिंग हो गया, 44th में एक बार रिकंसिडरेशन के लिए भेजा जा सकता है. ओके, ट्रेस द चेंज ऑफ डायनामिक्स. ओके सर, सिर्फ यही लिख देंगे जो आपने अभी बोला? हाँ, सिर्फ यही लिख दो. और क्या लिखोगे? इतना ही लिखो, बोर हो गया. ओके, एग्जैक्टली ऐसे कैसे लिख दो. Okay, I'll repeat the question. Trace the change of dynamics between the president and the prime minister from the original constitution till the 44th amendment 1978. बात समझ में आया
या नहीं? और ओके, चलो ऑल गुड माय फ्रेंड्स। किसी को डाउट? नथिंग? कूल, चलो आगे चले। राइट, हाँ 44th के बाद कुछ चेंज नहीं हुआ माय फ्रेंड्स। इंदिरा गांधी चली गई, अब कौन चेंज करे? ओके, नाउ लिसन, नाउ मुझे प्रेसिडेंट बनना है। ओके, मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं। ओके, इफ आई वांट टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके ओके, मैं प्रेसिडेंट बनना चाहूंगा, तो मुझे क्वालिफिकेशन है, राइट। मेरी क्वालिफिकेशन इज 35 एलओसी। बोलो जरा ये बात एक साथ बोलो, जल्दी बोलो, सब लोग बोलो 35 एलओसी। जल्दी बोलो सब लोग, 35 एलओसी, राइट। ये है तुम्हारी क्वालिफिकेशंस। ओके, क्या क्वालिफिकेशंस है? सर मेरी एज 35 इयर्स ऑफ एज एंड अबव होनी चाहिए। ओके, नंबर 1। ओके, नंबर 2, ध्यान से सुनना माय फ्रेंड्स। ओके, यू नो मैं फिर ये बात बोल रहा हूँ। ओके, ये उर्दू है, राइट, एक नुक्ते का सवाल है। ओके, ऑल I should have all the qualifications of being a Lok Sabha member. मैंने क्या बोला? All the, ये number 1 is I should be 35 years of age or above, and I should have all the qualifications of being a Lok Sabha member. किसी ने मेरे मुंह से सुना कि you should be a Lok Sabha member? No. Okay, मैंने क्या बोला? All the qualifications of being a Lok Sabha member. Number 3, I should not be holding anything called as office of profit. इसको हम बाद में करेंगे, बट तुमने सुना जरूर होगा। Okay, I should not be occupying any office of profit, and last, I should be a citizen of India. हो गया जी, मुबारक हो गया। Are you understanding? So मेरी qualifications क्या है? जल्दी बोलो। 35 LOC। 35 LOC बोले मतलब 35 years of age, all the qualifications of being a Lok Sabha member. कोई गलती मत कर देना, that Lok Sabha member लिखकर आ मत जाना। Okay, and you should not be occupying office of profit, and you should be a citizen of India. इसको कैसे याद रखते हैं? 35 LOC। यहाँ पर याद रखो 35 LOC, 35 ROC आएगा तो वाइस प्रेसिडेंट होगा। कैसे चेंज करने वाले उसको? जल्दी बोलो, कैसे याद रखोगे? वेरी गुड, ऑल द क्वालिफिकेशंस ऑफ बीइंग अ राज्यसभा मेंबर। तुम इंटेलिजेंट हो गए। ओके, सो वाइस प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशंस होगी 35 ROC, प्रेसिडेंट साहब की क्वालिफिकेशंस होगी 35 LOC। बात समझ में आ गया बच्चों? बड़ी, आर यू अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड्स? कूल, ऑलराइट सर। अच्छा, अब ना मैं तुम्हें क्वेश्चन दूंगा, बिल्कुल ध्यान से सुनते जाना, ठीक है? पहले इंपॉर्टेंट बात सुनो। सपोज मैं प्रेसिडेंट बन गया, ओके, एंड जब मैं प्रेसिडेंट बना, ओके, जब मैं प्रेसिडेंट बना, ओके, तो मैं लोकसभा मेंबर था। ओके, आई एम ऑलरेडी अ लोकसभा मेंबर, राइट, एंड आई गॉट इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट। ओके, आई गॉट इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट। तो मैं लोकसभा मेंबर था, या फिर राज्यसभा मेंबर था, या मैं गवर्नर था, या मैं एमएलए था, या मैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल था। तो मैं ऐसे करता हूँ, मैं प्रेसिडेंट भी बन जाता हूँ और ये भी कंटिन्यू करता हूँ, इनमें से कोई भी एक कंटिन्यू करता कर लूं। वेरी गुड। तो मैंने क्या बोला? देयर शैल बी नो डुअल मेंबरशिप। किसी हमारे फ्रेंड ने लिखा बहुत अच्छी तरह से बात। सो व्हाट इज दिस? नो डुअल मेंबरशिप मतलब क्या? सर जिस दिन आप प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए, उस दिन ये सीट वेकेंट करके आना। ओके, तुम सिर्फ प्रेसिडेंट बनोगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? नो डुअल मेंबरशिप। गुड ना? एवरीवन हैज अंडरस्टूड, राइट? तो मेरी बात समझो, यस और नो, राइट? तो अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन सुन रहा, तो तुम्हें एक क्वेश्चन आया था, ओके, वो क्वेश्चन है व्हिच आर द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन था, ये हमने टेस्ट सीरीज में था। Which of the following is a ground for disqualification? Is a ground for disqualification, disqualification for contesting election of the president? ये क्वेश्चन है प्रीलिम्स का, ओके, ऑफ द प्रेसिडेंट। तो चॉइस नंबर 1 ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, चॉइस नंबर 2 बीइंग अ लोकसभा मेंबर, चॉइस नंबर 3 बीइंग अ राज्यसभा मेंबर, या इसको ऐसे कर लेते हैं, मेरे को ये बाकी याद नहीं, मेरे को बोथ द अबव, ओके, और नन ऑफ द अबव, मुझे बाकी याद नहीं। समझ में आ गया कि नहीं? व्हिच आर द फॉलोइंग? अरे मेरे को ये रुको, मेरे को पोल करने दो। अरे मुझे बड़ा मजा आता है इसमें। चलो ABCD, जल्दी बोलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या ये कर क्यों नहीं रहो? कैसे करते हैं यार? अनबिलीवेबल।
हाँ अब ठीक है, जल्दी आंसर दो, अब तो मैंने दिया। हाँ वेरी गुड। Which of the following is a ground for disqualification for contesting election of the president? हो गया क्या ये खत्म? क्या आंसर है? मेरे तो आंसर ही नहीं समझ में। कैसे पता चला आंसर? छोटो यार, पता नहीं चला इसका आंसर क्या है। पता नहीं यार। मेजोरिटी वोटेड फॉर डी, नन ऑफ द मेंबर्स। अरे क्यों? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माय फ्रेंड्स, नो। तुम वही मैं बोल रहा हूं, ज्यादा होशियार मत बनो। ओके, तुम ज्यादा होशियार कर गए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज अ ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन बोथ फॉर कॉन्टेस्टिंग द इलेक्शन एज वेल एज होल्डिंग द ऑफिस। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैंने क्या बोला? होल्डिंग द ऑफिस एज वेल एज कॉन्टेस्टिंग द इलेक्शन, दोनों के लिए ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन इज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। लेकिन लोकसभा मेंबर होना इज ओनली द ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन टू होल्ड द ऑफिस। मैं इलेक्शन लड़ सकता हूं। बच्चे समझ में आया या नहीं? आर यू अंडरस्टैंडिंग? होल्डिंग ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट दोनों से तुम्हें डिस्क्वालीफाई करवा देगा। इन अदर वर्ड्स, यू आर नॉट अलाउड टू कॉन्टेस्ट एंड यू आर नॉट अलाउड टू होल्ड द ऑफिस। ओके, लेकिन with regards to with regards to the Lok Sabha member, it is only a ground for disqualification from holding the office. Contest तो तुम करोगे, मुझे कैसे पता कि मैं जीतने वाला हूँ कि हारने वाला हूँ? ओके, मैं तो लोकसभा मेंबर हूँ, मैं कॉन्टेस्ट करता हूँ। ओके, मैं कॉन्टेस्ट करता हूँ, मैं जीत गया तो मैं छोड़ दूंगा, नहीं जीत गया तो मैं लोकसभा वापस। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई स्टोरी? Friends, are you understanding my story or not? Everyone has understood. Okay, so you have to be very very careful on this part. Okay, यहाँ पे word क्या था? Contesting the election. Okay, बड़े ध्यान से आंसर देना। Okay, इसलिए मैं बोलता हूँ जब भी क्वेश्चन बहुत सिंपल आएगा, okay, there is always लोकसभा सीट इज ऑल्सो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। वेरी गुड नैना। ओके, ऐसा कर देना, उसी टाइम फॉर्म भर देना। ओके, लोकसभा सीट इज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो लेजिस्लेटर कौन है? ओके, अभी तो अनबिलीवेबल हो यार, तुम कुछ मत लिखो यार प्लीज, ठीक है प्लीज। तुम, मैं तभी बोलता हूँ कृपा करके कुछ भी मत बताया करो यार, झटका लग जाता है मुझे। ओके, प्लीज कुछ भी मत लिखो। ओके, मैं खुद बताऊंगा तुम्हें। एक्स्ट्रा एक लाइन भी मत बोलो यार प्लीज। राइट, so which of the following is the ground for disqualification for contesting election of the president? Please understand the answer, okay, and follow this part. Okay, या वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, थैंक यू यार, तुम लोग मुझसे पढ़ रहे हो सीरियसली यार। मतलब क्या पता तुम में से कोई नेक्स्ट टीएन सेशन बने यार। मतलब हमारे कितने टैलेंटेड स्टूडेंट्स, राइट, वो फेल हो गए होंगे यार आईएएस के एग्जाम ऑन द बेसिस ऑफ जैसे तुम पढ़ते हो यार। मतलब अनबिलीवेबल हो यार, इतने टैलेंटेड लोग हमारे देश के, मतलब कैसे एग्जाम पास करते होंगे यार। अनबिलीवेबल यार, आई एम रियली, मतलब कुछ करना चाहिए यार, पीआईएल डालना चाहिए, पॉलिटिक्स स्कूल में पढ़ाना चाहिए। I'm really telling you. No, honestly, yeah. No, no, it's not a satire, Indrajit. It's not at all satire. I'm seriously saying it is not a level playing field, my friend. It's not a level playing field. I'm sorry to say. I'm actually saying it is not a level playing field. Okay. बराबर की लड़ाई नहीं चल रही है फ्रेंड्स। ओके, बेसिक नॉलेज नहीं मालूम है, ये तो वही वाली बात है कि हमारे इतने, तुम लोग इतनी मेहनत करते हो माय फ्रेंड्स। आई एम रियली टेलिंग यू, प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। देयर इज अ रियल ट्रेनिंग की प्रॉब्लम है। इट्स अ रियल ट्रेनिंग की प्रॉब्लम। बराबरी की लड़ाई नहीं चल रही है। ओके, इट्स नॉट बराबरी की लड़ाई। इट्स नॉट, बट आई एम सॉरी टू से इट्स वेरी, इट्स हार्ट एकिंग। मतलब बड़ा अजीब लगता है यार, ऐसे कैसे हो सकता है कि यार बेसिक्स नहीं पढ़ाते स्कूल में यार। दिस इज नॉट गुड, इट्स नॉट गुड। आई थिंक स्कूल में मतलब बेसिक्स नहीं पढ़ाते माय फ्रेंड्स, व्हाटएवर, सैड। चलो, आई होप इसी बहाने नेक्स्ट बैच ऑफ अच्छा आईएएस गैंग आएगा। बेटा जब तक तुम लोग ठीक नहीं होंगे तब तक तो गड़बड़ हो जाएगा माय फ्रेंड्स। आई डोंट नो, ये तो प्योर बेसिक्स है। तो मैं वही वाली बात कर रहा हूँ कि मैं मतलब साइन अपॉन कॉस को कुछ और ही वर्ड यूज कर रहा हूँ। मुझे ये भी नहीं मालूम है कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज टैन थीटा, ये नहीं पता। ये तो बड़ा गड़बड़ है। आई अंडरस्टैंड। और ये फैकल्टी को भी नहीं आता इसका मतलब ना, द टीचर्स आल्सो डोंट नो दिस, अदरवाइज हमारे स्टूडेंट्स कैसे गलती कर सकते हैं यार। अब नैना ने ये आंसर दिया, नैना इज अ गुड स्टूडेंट, आई कैन मेक आउट, शी इज वर्किंग हार्ड नाउ, शी इज वर्किंग हार्ड। मैंने उसको देखा है हर टाइम शी इज इन द क्लास, शी इज ट्राइंग टू आंसर। बट इसका मतलब नैना को बेसिक्स नहीं पता है ना स्कूल में। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। लेट्स सी दिस। चलो, फेयर इनफ, नो प्रॉब्लम, राइट, गुड फॉर यू। अच्छा, तुम टॉप करो। Alright, so मेरे qualifications is 35 LOC. Okay, so there is 35 LOC, ये मेरी qualifications है, right? Now 35 LOC के बाद मेरे qualifications होने वाले हैं, तो मेरे को, बट हमारी एक प्रॉब्लम है।
अरे नहीं बेटा, नहीं ना, आई एम नॉट आस्किंग यू टू बी सॉरी बच्चे, मैं तो तेरी तारीफ कर रहा था। आई एम एक्चुअली सेइंग दैट ऑल ऑफ यू शुड बी गिवन एन इक्वल अपॉर्चुनिटी। फिर देखते हैं ना, ओके फिर देखते हैं, आप देखें जरा किसमें कितना था। बट द पॉइंट हियर इज कि आप लोगों को पढ़ाया नहीं गया है, यू हैवंट बीन टॉट एट ऑल इन द स्कूल्स, ओके, व्हिच इज अ सैड थिंग, व्हिच इज अ वेरी सैड थिंग। इफ यू डोंट नो द लॉ ऑफ द कंट्री, फिर रूल ऑफ लॉ कैसे होता है? मेरे ख्याल से तो ये पीआई डालना चाहिए, सोचता हूँ मैं इस बारे में कुछ। चलो फिर है ना, नाउ लिसन लिसन, चलो अब चलो इसको सुनो। अब मेरे प्रेसिडेंट साहब मेरे पास आए और मैंने प्रेसिडेंट साहब को बोला, प्रेसिडेंट साहब चलो आपको इलेक्ट करते हैं। तो प्रेसिडेंट साहब बोले चलो 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 इलेक्ट होते हैं, हम भी जाएंगे पीपल के पास और पीपल हमें वोट करेंगे। तो बोलेंगे नहीं प्रेसिडेंट साहब, आपका इलेक्शन डायरेक्ट नहीं होगा, ओके, यू विल नॉट हैव डायरेक्ट इलेक्शन, यू विल हैव इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो मेरे प्रेसिडेंट साहब ने मुझसे पूछा कि प्रेसिडेंट सिद्धार्थ क्यों? तो मैंने कहा सर देखो, हमारे कंट्री में देयर इज अ टेबल ऑफ प्रीसिडेंस। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? टेबल ऑफ प्रीसिडेंस। बोले ओके सिद्धार्थ, इसका मतलब? मैंने बोला सर, इंडिया में यू आर द फर्स्ट सिटीजन, यू आर द फर्स्ट टॉप मैन, हम आपको हेड ऑफ द स्टेट बोल रहे हैं, यू आर द हेड ऑफ द स्टेट, ओके ठीक है सर। तो आप नंबर 1 सिटीजन हो, आपको हमने नाम दिया है, यू आर द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। बोले अच्छा, मैंने कहा यस राइट, यू आर द फर्स्ट सिटीजन, इसी वजह से यू आर द हेड ऑफ द स्टेट। लेकिन लेकिन अगर हम टेबल ऑफ प्रीसिडेंस की बात करेंगे, अगर हम टेबल ऑफ प्रीसिडेंस की बात करेंगे, ओके, तो हमने आपको नंबर 1 पोजीशन दे दिया, ओके। लेकिन जो रियल पावर है ना, जो रियल गवर्नमेंट है, ओके, वो प्राइम मिनिस्टर साहब के पास है। तो बोले सिद्धार्थ ये तो मुझे मालूम है। तो मैंने कहा सर मालूम है आपको कि रियल प्राइम मिनिस्टर के पास क्यों है? तो बोले क्यों? मैंने बोला देखो सर, रियल सोर्स ऑफ पावर, ध्यान से सुनना माय फ्रेंड्स, ओके, कोई भी गलती मत करो, दिमाग बिल्कुल मत लगाओ, दिमाग छोड़ के ना टेबल पे छोड़ दो, ओके। द रियल पावर इज, सोर्स ऑफ पावर इज पीपल। जो पीपल के क्लोजेस्ट है, ओके, दोज हु आर क्लोजेस्ट टू द पीपल, दे आर मोर पावरफुल इन कंपैरिजन टू पीपल से जो दूर है। तो प्रेसिडेंट साहब बोले मतलब पीपल से क्लोज कौन है? मैंने बोला पीपल से क्लोज वो है हु आर डायरेक्टली इलेक्टेड। जो डायरेक्टली इलेक्टेड है, राइट, they will have more powers as compared to the one who is indirectly elected. Are you understanding? Hence, the members of parliament, okay, who get directly elected will be more powerful than you who are indirectly elected. And members of parliament, majority party का leader बनाते हैं और उसको नाम देते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो जो प्राइम मिनिस्टर है इन एग्जीक्यूटिव टर्म्स is far stronger than you. Are you understanding this part, my friends? Everyone has understood, okay? Yes or no? तो प्रेसिडेंट साहब बोले मतलब, तो मैंने कहा प्रेसिडेंट साहब आप टेबल ऑफ प्रीसिडेंस में नंबर 1 हो, ओके, आप टेबल ऑफ प्रीसिडेंस में नंबर 1 हो, लेकिन पावर में आप प्राइम मिनिस्टर से पीछे रहोगे। तो हम आपको फर्स्ट रैंक देंगे टेबल ऑफ प्रीसिडेंस में और आप हो प्रेसिडेंट, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब टेबल ऑफ प्रीसिडेंस में 3rd नंबर पे रहेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट माय फ्रेंड्स? राइट। लेकिन पावर के मामले में प्राइम मिनिस्टर साहब आपसे ऊपर हो जाएंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? वो प्रेसिडेंट साहब बोले सिद्धार्थ अगर ऐसा ही अरेंजमेंट है, इसका फायदा क्या है? मैंने कहा प्रेसिडेंट साहब इससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा। क्या नहीं होगा? वाइस प्रेसिडेंट सेकंड माय फ्रेंड, इससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वरना अगर मैंने आपको भी डायरेक्टली इलेक्टेड बना दिया, इफ आई मेक यू डायरेक्टली इलेक्टेड, तो आप बोलोगे प्राइम मिनिस्टर भाई तू टेबल ऑफ प्रीसिडेंस में भी मेरे से नीचे है और तू और मैं दोनों ही डायरेक्टली इलेक्टेड है, तो जीता कौन? जीता मैं। यस और नो? यस और नो? डायरेक्टली इलेक्टेड में हम दोनों बराबर है और टेबल ऑफ प्रीसिडेंस में मैं हूं, तो भाई इसका मतलब तो हेड ऑफ द स्टेट भी मैं हूं और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी मुझे होना चाहिए। यस और नो? तो सर फिर इंडिया इंडिया थोड़ा रहेगा सर, ये तो यूएसए बन जाएगा ना सर फिर। यस और नो? My friends, are you understanding? This is the only difference. Picture clear getting, my friends? Are you understanding? Got this point? तो प्राइम मिनिस्टर साहब से और प्रेसिडेंट साहब से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अवॉइड करना है,
तो हमको एक को इनडायरेक्टली इलेक्ट करना पड़ेगा। किसको इनडायरेक्टली इलेक्ट करना पड़ेगा? जो प्रेसिडेंट है। व्हाई? बिकॉज ही इज द नॉमिनल हेड एग्जीक्यूटिव और द फॉर्मल हेड एग्जीक्यूटिव। इज दिस पिक्चर गेटिंग क्लियर? एब्सोल्युटली। तो सर हमें प्रेसिडेंट साहब के इलेक्शंस करने हैं। प्रेसिडेंट साहब के इलेक्शंस कैसे करोगे माय फ्रेंड्स? प्रेसिडेंट साहब के इलेक्शंस करोगे बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन, बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तीनों वर्ड्स लिखो। मैंने क्या बोला? मेथड्स ऑफ इलेक्शन मस्ट बी इनडायरेक्ट इलेक्शन, बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये लिख लो एग्जैक्टली एज इट इज। The method of elections is indirect election by proportional representation and single transferable vote. सबने लिख लिया? तो सर कौन कराएगा मेरा इलेक्शन? सर आपका इलेक्शन कराएंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 1, ये सब प्रीलिम्स क्वेश्चन है। So who is going to conduct my elections? My conduct of elections shall be done by the Election Commission of India. सबने लिख लिया? Yes or no? Okay. सर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो पीपल में तो वोट करवाएंगे सर। अरे अभी तो समझाया बेटा, नहीं करवाएंगे ना प्रेसिडेंट साहब, आप क्यों इतना ऑब्सेस्ड हो रहे हो? हम आपका इनडायरेक्ट इलेक्शन कराएंगे। ओके, वेरी गुड सर। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसे कराओगे सर? आप करवाओगे इलेक्टोरल कॉलेज से। किससे कराओगे? इन इलेक्टोरल कॉलेज से। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन कौन कराएगा? इलेक्टोरल कॉलेज से करवाएगा। सर ये इलेक्टोरल कॉलेज कहां पे लिखा हुआ है? सर ये आर्टिकल 54 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। कहां लिखा हुआ है? आर्टिकल 54। अनिरुद्ध मुझसे कुछ भी मत पूछो बच्चे। ओके, तुम्हारे को जो सोचने में भी आ रहा है ना, वो मैं तुम्हें बता दूंगा। डोंट आस्क मी एनीथिंग। ओके, लास्ट में तुम मुझे छोड़ के आओगे, तुम बंद कर दोगे बुक, बोलोगे सर छोड़ो यार, अब ज्यादा ही पढ़ा दिया आपने। डोंट वरी, रिलैक्स। ओके, जस्ट टेक इट चिल पिल। ओके, आर्टिकल 54 सेज इलेक्टोरल कॉलेज। सर इलेक्टोरल कॉलेज आर्टिकल 54 में डिस्क्राइब्ड है। हाँ, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ उसको सुनना। वर्ड क्या यूज करें? व्हाट इज इलेक्टोरल कॉलेज मेड अप ऑफ? ओके, सुनते जाओ। जैसे मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ वही बोलना। मैं बोल रहा हूँ it consists of all the elected members of the parliament। मैंने क्या बोला? मैंने वर्ड क्या यूज किया? ये वर्ड है, ये की वर्ड है माय फ्रेंड, ये एटम बॉम्ब है। all the elected members of the parliament। वेरी गुड सर। तो सचिन तेंदुलकर साहब पार्लियामेंट में थे, तो सचिन तेंदुलकर साहब इलेक्टोरल कॉलेज में होंगे। यस और नो? नो। क्यों नहीं भाई? क्यों नहीं थे? बिकॉज वो नॉमिनेटेड थे। वेरी गुड, तुम होशियार हो गए। ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ the Vidhan Sabha, that is the legislative assemblies, okay, Vidhan Sabha of all the states and the 2 union territories जिनके पास अपनी विधान सभा है, that is Delhi and Puducherry, that is Delhi। ये बोलते हुए चलो, ऐसा सपने में मत जाना। ओके, मैंने क्या बोला? all the elected members of the parliament and all the elected members of the legislative assembly। सर विधान परिषद के मेंबर्स भी तो होंगे ना, वो भी तो इलेक्टेड होते हैं। सुना ही नहीं दिया प्रेसिडेंट साहब के इलेक्टोरल कॉलेज ने। मैंने क्या बोला? विधान सभा। हमने क्या बोला? विधान सभा। मैं तुम्हें सारे क्वेश्चंस बता रहा हूँ। ओके, ऑल द स्टेट्स एंड दिल्ली एंड पुडुचेरी। सर ये अनफेयर है। दिल्ली को क्यों, पुडुचेरी को क्यों? ओके, बाकियों को क्यों नहीं? बेटा बिकॉज दिल्ली एंड पुडुचेरी के पास अपनी अपनी विधान सभा है। दे हैव देयर ओन विधान सभा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? ओके, सूरज अभी बन गई है क्या विधानसभा कश्मीर की? जब बनेगी तो डाल देंगे, ठीक है? जिस दिन आएगा मोस्ट वेलकम। ठीक है बेटा, ऑब्वियस क्वेश्चंस मत पूछा करो बच्चे, दुनिया को मालूम है वहां पे विधानसभा बनेगी। ओके, जब आएगी तो डाल देंगे, अभी तो नहीं है ना, जब होगी डाल देंगे। 31 अक्टूबर के बाद मैं पढ़ाऊंगा तो डाल देंगे। ठीक है बच्चे, ऑब्वियस क्वेश्चन मत पूछा करो बच्चे। तो डीलिंग विद चैंपियंस है ना, तुम आईएएस ऑफिसर्स बन रहे हो, राइट? सो से द वर्ड ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, all the elected members of the legislative assembly। सर विधान परिषद क्यों नहीं डाला? सर ये बुरा लग रहा है। सर हमको क्यों नहीं डाला? बेटा वो इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश के सिवाय, और पहले जम्मू एंड कश्मीर के बाद भी था, और किसी के पास विधान परिषद नहीं है। ओके, तो हो क्या जाएगा उसकी वजह से? ओके, उसकी वजह से हो ये जाएगा सर बिकॉज इन लोगों को अनड्यू एडवांटेज मिल जाएगा। यस और नो? गोवा रोएगा। यस और नो? आर यू अंडरस्टैंडिंग? गोवा बोलेगा मुझे क्यों नहीं दिया? ओके, मेरे पास तो विधान परिषद नहीं है, मैं सबको इक्वल मौका देना चाहता हूं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हाउ लॉजिकल कैन लाइफ बी? नो, इससे भी ज्यादा कुछ लॉजिकल हो सकता है क्या? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। यस और नो? हम क्यों किसी को ज्यादा मौका देंगे? हमारे हेड ऑफ द यूनियन बन रहे हैं। ओके, हम सबको बराबरी का मौका देंगे। किसको देंगे? ऑफ विधान सभा।
Kavita, बीच में बेटा remind me, okay, whenever I'm going in this Hindi speed, okay, I completely forget. So I'm just repeating this part. Election Commission of India is the one which will conduct the indirect election. Indirect election is done by Electoral College. Electoral College is described under Article 54. Article 54 consists of all the elected members of the parliament and all the elected members of the legislative assemblies of all the states and the two union territories of Delhi and Puducherry. Are we absolutely clear? No nominated members shall be a part of this. No Vidhan Parishad members will be a part of it. Are we absolutely clear? The clear word that you have to be very, very worried about is this one. The word is all elected members. No making no mistake about this part. All okay, sir? काफी हो गया सर? No, my friends. कहां से काफी हो गया? अभी तो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है. So, Election Commission of India will conduct the election. मैं तुम्हें टॉपर बना दूंगा my friends, अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगा के रखो यहाँ पर. Okay. Election Commission of India will conduct the elections through the Electoral College. अभी मैंने तुम्हें उसका Constitution पढ़ा दिया है. Okay, so we have understood all the elected members of Parliament, all the elected members of the Vidhan Sabhas of all states and the two union territories of Delhi and Puducherry. Yes or no? Clear on this? Very good, sir. Now Election Commission of India. सर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्टोरल कॉलेज तो बता देता है, बट कैसे करेगा? हाउ विल दे डू इट? सर मुझसे पूछो ना, मैं बताता हूँ सर. डोंट वरी. The word here is presidential and vice presidential election rules of 1952. Say the word presidential, presidents and vice presidents elections rules of 1952 के अनुसार हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये इलेक्शंस कंडक्ट करेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैं तुम्हें जितना पढ़ा रहा हूँ ना, इतना तो प्रेसिडेंट्स आपको भी नहीं मालूम है कि उनका इलेक्शन ऐसे होता है. ओके, so now pay attention to this part. Okay, very good, sir. Election Commission of India will also appoint what is called as a returning officer. Okay, what is this? According to a returning officer. So returning officer क्या होता है? बेटा तुमने कभी इलेक्शन नहीं पार्ट लिया. Okay, returning officer is actually who conducts the election. Say the word, who conducts the election. Okay, sir. So कैसे करेंगे प्रेसिडेंट साहब पूछ रहे हैं. कौन बनेगा? सर हमारा रिटर्निंग ऑफिसर बनेगा द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा सेक्रेटेरिएट. मैं क्या बोल रहा हूँ? सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा सेक्रेटेरिएट. जब तुम आईएएस ऑफिसर बनोगे और बेस्ट ऑफ द बेस्ट पोजीशन पे, टॉप पोजीशन पे पहुंच जाओगे, तो तुम बन जाओगे सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा सेक्रेटेरिएट. तब मुझे भूलना मत. ओके, मुझे तुम्हारी बड़ी याद आएगी तब. ओके, अभी नहीं याद आएगी. तो फिर आएगी सेक्रेटरी जनरल. ऐसे ही एक और जगह होता है, सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा सेक्रेटेरिएट. ओके, तो सर दोनों का सेक्रेटेरिएट होता है. ओ यस, इनका बंगला देखा तुमने? ओहो, ऑसम, एब्सोल्युटली, भगवान करे तुम बनो. ओके, सो सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा सेक्रेटेरिएट एंड सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा सेक्रेटेरिएट इज अ वेरी सीनियर आईएएस ऑफिसर. ओके, कैबिनेट सेक्रेटरी के रैंक पे होता है. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग. कैबिनेट सेक्रेटरी इज अ टॉप मैन. यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये बड़े हाई पोजीशन पे. सर ये आपने कुछ गड़बड़ कर दी, यहाँ पे डाल दिया और. यस और नो? ये और में तो लड़ाई हो जाएगी ना सर. माय फ्रेंड चिंता मत करो ना, बारी बारी करेंगे. बारी बारी मतलब by turns. What does this mean? That if this presidential election, I am, that is the Lok Sabha Secretariat Secretary General Sahab is the returning officer, then the next presidential election में ये बनेंगे, फिर उसके next presidential election में ये बनेंगे. So on a rotation basis, by turns हम लोग अपना काम करते हैं. Are you understanding? बच्चे समझ में आया या नहीं? Everyone has understood? Okay, cool. वेरी गुड सर. अब तो आप ठीक ही लग रहे हो. ओके, अब कोई प्रॉब्लम नहीं. अरे मेरे बच्चे अभी तो शुरू हुई है कहानी, अभी कहां से? ऑलराइट, ठीक है सर, मैं प्रेसिडेंट हूं. ओके, आई एम द प्रेसिडेंट. ऑलराइट, ऑलराइट, ठीक है सर, आप प्रेसिडेंट हो. फिर सो जो प्रेसिडेंट का टर्म तो बता दो सर, कितने साल बनूंगा अगर मैं प्रेसिडेंट बनूंगा तो? बेटा यू विल बिकम द प्रेसिडेंट फॉर 5 years सर. नो टर्म? सूरज, नो टर्म? ऐसा क्यों भाई? नाराज हो गया तो? एक बार प्रेसिडेंट बनाओगे हटाओगे नहीं यार? अगर ऐसी बात होती ना, चलो छोड़ो यार, तुम तो इमोशनल कर देते हो. अच्छा छोड़ो. सुनो, सो माय टर्म इज 5 years. क्वेश्चन तो कुछ और ही था. ओके, नाउ तो क्वेश्चन ये नहीं, क्वेश्चन इज माय टर्म इज, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं. माय टर्म इज मैक्सिमम ऑफ 5 years फ्रॉम, मेरा चॉइस नंबर 1. ओके, फ्रॉम द डेट ऑफ इलेक्शन. चॉइस नंबर 1. चॉइस नंबर 2, from the date of results of election.
Choice number 3, from the last day of the previous president. आप ध्यान से सुनना. Or last, from the day that I enter office. यार तुम लोग तो बड़े होशियार हो गए यार, तुम मेरे ट्रैप में नहीं आ रहे. अरे वाह, तुम बड़े होशियार हो गए. Yes, the answer here is from the day I enter office. ये बड़े डेंजरस होते जा रहे हो यार तुम. ओके, खतरनाक हो गए तुम. No problem. From the day I assume office is the answer. Okay. So the point here is from the day I assume office. You lick low, my friends. Okay. Okay. Answer is that the presidential term is 5 years from the day he assumes office. In the word that he enters the office, वहां से the president साहब का 5 years count होगा. सर 5 years count होगा. सर ये थोड़ा जबरदस्ती कर रहे हो आप. सिर्फ 5 years exactly निकाल दोगे आप हमको? हाँ बेटा, हम आपको exactly 5 years के बाद निकाल देंगे. सर लेकिन ऐसा जरूरी तो है नहीं. मतलब क्यों सर? मैं ना 5 years में बैठा हुआ था. ओके, आपका नया प्रेसिडेंट बना ही नहीं. ओके, आपका नया प्रेसिडेंट आने में 1 महीना और लग गया. ओके, तो क्या करूंगा मैं? तो मेरे को आप निकाल दोगे? नहीं, तब हम आपको नहीं निकालेंगे. लिसन टू मी, माय प्रेसिडेंट, लैंग्वेज पकड़ो. ओके, लैंग्वेज पकड़ो माय फ्रेंड. सारा खेल वर्ड्स का है. द माय प्रेसिडेंट कंटिन्यूज और occupies office till his successor arrives. यार मत लिख यार ये सब 6 months 7 months. शिवम क्यों मेरे को इमोशनल कर रहा है यार? मत लिख ये सब. ओके, मत कर यार, ये ट्रैप है, ये करियर सुसाइड है. मत करो यार ये सब. क्या लिखे जाते हो? छड्डो यार तुम. वॉमिट करो जो कुछ भी तुमने पहले पढ़ा हुआ है, सब छोड़ दो. क्या क्या लिख देते हो यार तुम? डर नहीं लगता तुमको? प्रेसिडेंट साहब नाराज हो जाएंगे. मैंने क्या बोला? Till the time he occupies or continues, okay, till his successor arrives or occupies office. Okay, are you understanding this part? Everyone has understood. मेरी बात समझो. My term is, फिर से मैं बोल रहा हूँ language पकड़ो. Okay, everyone language पकड़ो. My term is 5 years from the day I assume office, but I shall continue to be in office. I shall continue to be in office till the successor arrives. ये आर्टिकल 56 सब क्लॉज 3 में लिखा हुआ है. इट इज आर्टिकल 56 सब क्लॉज 3 में है. ओके, मेरी बात समझ में आई? स्वाति, यू विल नॉट कैच इट ना माय फ्रेंड्स. तुम लोग डाउट्स पूछने में पड़ता है. ये मेरा टर्म है, मेरी नौकरी 5 साल की है. यहाँ पे मैंने ये नहीं बोला था कि योर टर्म कंटिन्यूस. मैंने बोला यू कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस. लैंग्वेज पकड़ो माय फ्रेंड्स, दिमाग चलाओ, शार्प रहो, शार्प. ओके, डॉक्टर अंबेडकर से सीख रहे हो तुम. ओके, डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है माय फ्रेंड्स. द बिगेस्ट जीनियस, 500 था उनका आईक्यू. ओके, प्लीज अंडरस्टैंड, समझो उनको लैंग्वेज पकड़ो. इतने ऐसे बच्चों वाले वर्ड्स मत पूछो यार, बुरा मान जाएंगे वो. ओके, द टर्म इज 5 years, राइट, बट ही ऑक्यूपाइज और कंटिन्यूस ऑफिस till his successor arrives. बेटा फाइन है, डेविल इज इन द डिटेल. ओके, वर्ड्स कैसे, मैं बोल रहा हूं वर्ड्स पकड़ो. बात समझ में आ गया? वेरी गुड सर. तो अब हम बनाएंगे, अब हमारा टर्म 5 years हो गया, मुझे पक्का हो गया. और सर लेकिन एक गड़बड़ है. ओके, एक गड़बड़ है. भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए. ओके, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ. ओके, खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए. ओके, दैट इस टर्म से पहले, ओके, इस टर्म से पहले कुछ हो जाए. ओके, डेथ, रेजिग्नेशन या इम्पीचमेंट हो जाए. क्या मैंने बोला? डेथ, रेजिग्नेशन या इम्पीचमेंट हो जाए. ओके, इन अदर वर्ड्स, सर ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं. द ऑफिस बिकम्स वेकेंट. मैंने क्या बोला? द ऑफिस बिकम्स वेकेंट. वेकेंट 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 वेकेंट. ओके, वेकेंट किस टर्म पे होता है? डेथ, रेजिग्नेशन या फिर इम्पीचमेंट में. ओके, सर रिजाइन भी कर सकते हैं प्रेसिडेंट साहब? अरे हाँ यार, क्यों नहीं कर सकते? ओके, he will give his resignation to the vice president. किसको करेंगे? the vice president. okay, vice president साहब को ये रिजाइन करेंगे. are you understanding? ये आर्टिकल 56 सब क्लॉज ए में लिखा हुआ है, राइट. तो मैंने डेथ किया या रेजिग्नेशन हुआ या इम्पीचमेंट हुआ. इम्पीचमेंट जो हम बाद में पढ़ेंगे, दैट इज रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट. अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट साहब अपने पास रख लेंगे क्या ये? नहीं. अब तुम्हें फाइन पॉइंट, जल्दी बोलो प्रीवियस स्टूडेंट्स, जल्दी बताओ किसको भेजेंगे? जल्दी बोलो, नहीं बता रहा. He will send it to the speaker. Okay, please understand. Remember this part. Okay, तो प्रेसिडेंट साहब रिजाइन करेंगे इन राइटिंग. ये सारे वर्ड्स है. इन राइटिंग टू द वाइस प्रेसिडेंट एंड दिस राइटिंग साल वाला रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट साहब लेंगे और किसको दे देंगे? स्पीकर को दे देंगे. ओके, दिस वाज स्पीकर वाइल पार्लियामेंट है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? एवरीवन इज क्लियर?
ओके ये आर्टिकल 56 सब क्लॉज 2 में दिया हुआ है। ये किसमें दिया हुआ है? आर्टिकल 56 सब क्लॉज 2 में दिया हुआ है। अब ये अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। तुम भूल जाते हो माय फ्रेंड्स, जो भी पूछ रहा है वाइस स्पीकर, वो इसलिए पूछ रहा है बिकॉज आर्टिकल 79 सेज पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द लोकसभा, द राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, और जो वाइस प्रेसिडेंट साहब है ना, इज नॉट अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा, भूल गए हो तुम? ओके, ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। कनेक्ट करना सीखो माय फ्रेंड्स, कनेक्ट करना सीखो। ओके, सारे कनेक्ट करो चीजों को। एवरीवन हैज अंडरस्टूड वाइस प्रेसिडेंट साहब का, तो ही इज ओनली द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, मेंबर ऑफ राज्यसभा थोड़ा है। स्पीकर इज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। समझ में आ रहा है बच्चे? कनेक्ट करो डॉट्स। ओके, वेरी गुड सर। अरे सर बात तो पूरी की नहीं आपने। वेकेंट हुआ तो क्या करूं मैं? वेकेंट हुआ तो अचानक ट्रिगर करेगा आर्टिकल 65 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ट्रिगर करेगा? आर्टिकल 65। आर्टिकल 65 जैसे ही ट्रिगर करेगा, वाइस प्रेसिडेंट साहब को बोला जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट साहब कृपा करके बन जाइए एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या बन जाओ? एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वाइस प्रेसिडेंट साहब बड़े खुश, ओहो अभी तो 3 साल का टर्म बाकी है, अब मैं बाकी 2 साल प्रेसिडेंट रहूंगा। यस और नो? मैं तो प्रेसिडेंट रहूंगा। मैं बोलूंगा वाइस प्रेसिडेंट साहब, क्योंकि इतनी गलतफहमी मत करो, ये हिंदुस्तान है, इंडिया में ऐसा नहीं होता, अमेरिका में ऐसा होता है। कहां होता है? अमेरिका में ऐसा होता है। द रिमाइंडर ऑफ द टर्म के लिए वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं द प्रेसिडेंट। हमारे यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट साहब आप मैक्सिमम 6 महीना एक्टिंग प्रेसिडेंट रहोगे। कितना रहोगे? मैक्सिमम 6 महीना टाइम। होल्ड ऑन, इसको मैं हटाता हूं, बहुत ज्यादा हो गया। सुनो मेरी बात। सो मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनते जाओ मेरी बात की, बहुत कीवर्ड्स है। अगर मुझे एग्जाम पेपर बनाना पड़े तो मैं प्रेसिडेंट के में से इतने सारे क्वेश्चन बना दूं। तो सर ये मैं वेकेंसी की बात कर रहा हूँ सर, मैं वेकेंसी की। हाँ जी, वेकेंसी क्या है? Vacancy are 3 parts: death, resignation, or impeachment. Okay, or removal of the president by on violation of constitution. Very good, sir. Now what will get triggered? Sir, Article 65 will be triggered. What will we send? We will send Vice President of India. Vice President of India will come and he will become the acting President of India. But that maximum period is 6 months. Sir, within 6 months क्या करना पड़ेगा? अरे तुम्हें थोड़ा कुछ करना पड़ेगा फ्रेंड्स। Election Commission of India must conduct the elections to the next president. मुझे इलेक्टेड प्रेसिडेंट चाहिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। मैं 6 महीने से ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा। मैं 6 महीने से ज्यादा आई विल नॉट हैव एक्टिंग प्रेसिडेंट। सर वाइस प्रेसिडेंट 3 महीना एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे, 2 महीना एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे, 1 महीना एक्टिंग, एंड वाइस प्रेसिडेंट साहब ने रिजाइन कर दिया। लो सर अब क्या करोगे? वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, प्रेसिडेंट भी नहीं है, कोई बात नहीं, वी विल सेंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल रिमेन द एक्टिंग प्रेसिडेंट। सर 6 महीना वाइस प्रेसिडेंट रहेगा और 6 महीने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेगा, टोटल तो 1 साल हो गया। बेटा तुम्हें बुद्धि मत यूज करो, वाइस प्रेसिडेंट हो चाहे सीजेआई हो, सब मिला के एक्टिंग प्रेसिडेंट will be 6 months. Are you understanding this part? Everyone has understood, okay? यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट की बात नहीं हो रही, यहाँ पर एक्टिंग प्रेसिडेंट की बात हो रही है। एक्टिंग प्रेसिडेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ मंथ्स कितना रहेगा? 6 मंथ। सर ऐसा कभी हुआ है हिंदुस्तान में? हुआ है बेटा, 1969 में हुआ है। डॉक्टर जाकिर हुसैन की डेथ के टाइम डॉक्टर मिस्टर वीवी गिरी became the president, vice president, or sorry, the acting president, and then he resigned. So Chief Justice Hidayatullah became the Chief Justice of India. Kavita, I said the Chief Justice of India, in case the Vice President also cannot continue as the President, then the Chief Justice of India shall act as the acting President, like it happened in 1969 with Justice Hidayatullah. Either ways, the maximum time period I can live with this title is 6 months. All good? All good or not? अगर सीजीआई ने तो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओके, किसी को कोई डाउट, कोई शक, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन पूछ लो। Nobody in the vice president. Yes, sir, you got the point. Yes, Subhadra. 56A is resignation. Six months is continuous or did continuous is counted. What is discontinuous? Discontinuous. What is discontinuous? मतलब Siva Shakti, I will be very happy if you explain this to me, please. What is discontinuous 6 months? I'll be very happy. मुझे जरा समझाया जाए, मतलब ये विचित्र डाउट को प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। What is discontinuous 6 months? बीच में गैप, और बीच में गैप कौन, मैं क्या करूंगा मैं उसमें?
नहीं ना, आपने कौन सा वो करना है? व्हाई आर यू पुटिंग योर सो मच ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स इनटू दिस पार्ट? कॉन्सेंट्रेट ऑन द सब्जेक्ट. 1 month, then for 4 months, then 1 month. अच्छा, 1 month के बाद वो 4 months क्या होगा सुरज शक्ति? What will happen in that 4 months? मतलब मुझे भी थोड़ा सा लगना चाहिए ना कि यार हाउ कैन समबडी, मतलब मुझे भी पता. 1 month प्रेसिडेंट साहब नहीं है, मर गए. ओके. फिर 4 महीना प्रेसिडेंट साहब को हमने दोबारा लेकर आए. ओके. और फिर 1 महीना वापस लेकर आए. कैसे होगा मुझे बताना जरा इस वजह से. बड़ा मजा आता है कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछने में, सब ब्रेन फ्रेश हो जाता है. ऐसे तो डिज्नीलैंड में भी नहीं होता. नैना, why are you so bothered about how constitution is written? Please do the memorization, my friends. हो तो गया. ये डाउट पूछना भी एक प्रोफेशन हो गया लगता है. छठो यार, तुम लोग तो अपना ही टाइम वेस्ट करते हो. इतना क्लियरली बताने के बाद भी चलो यार ये कुछ पूछ ही रहे हमारे सर. अब देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन. ओके. What happens if president, vice president, CJ, nobody there? Then who will be the acting president? Then I will be made the president, my friend. कैसी बातें करते हो यार तुम. अनबिलीवेबल बातें करते हो यार. प्रेसिडेंट, मैंने बोला नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज बनेगा यार. प्रेसिडेंट नहीं होगा, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, सीजेआई भी नहीं है, नेक्स्ट 34 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट भी नहीं. भाई न्यूक्लियर अटैक हो गया यार, छड्डो, खत्म करो यार से आपका मुकाओ. अनबिलीवेबल हो यार. कॉमेडी हो गया यार. हाउ डू यू आस्क दिस क्वेश्चन? अनबिलीवेबल यार. सुभाशीष यार, चलो थैंक यू फॉर कूलिंग आउट द रिजल्ट. दिस इज ऑसम यार. सब खत्म, गेम इज ओवर. चलो फेयर इनफ. चलो एंजॉय. चलो थैंक यू फॉर मेकिंग मी लाफ. ओके. ब्यूटीफुल. ऑसम. ओके मेरा बेटा, प्रेसिडेंट नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट नहीं, सीजे नहीं, 34 जजेस नहीं, कोई और जज होगा जो सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होगा, पहला बैठा होगा, उसको बना देंगे. ठीक है बेटा. ओके. आर यू अंडरस्टैंडिंग माय फ्रेंड्स? चलो ऑसम. कूल. ओके. ऑलराइट. ओके. ऑलराइट. हमारा मेथड था इनडायरेक्ट इलेक्शन. ओके. अच्छा, यू हैव अ क्वेश्चन? अच्छा सॉरी सौरभ. अच्छा दिस क्वेश्चन, सॉरी. ओके. सर, एफडी ओनली ड्यूटीज ऑफ सिटीजन एंड नॉट फॉर द स्टेट. एफडी मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज, ओनली ड्यूटीज ऑफ सिटीजन एंड नॉट फॉर द स्टेट. फंडामेंटल ड्यूटीज फॉर सिटीजन, फॉर स्टेट. स्टेट की ड्यूटीज होती है माय फ्रेंड्स. स्टेट की कौन सी ड्यूटी होती है माय फ्रेंड? डीपीएस की डायरेक्शंस. ओके. स्टेट की कोई ड्यूटी नहीं होती माय फ्रेंड्स. ओके. Okay, we have another doubt, sir. Regarding contesting of elections of president, the question that you gave, can you explain that again? अरे बेटा वीडियो वापस देखो माय फ्रेंड्स, अभी पूरा मैं आई कांट डू दिस. लुक एट द रिपीट वीडियो, जस्ट सी दिस. यार अब तुम ये डाउट्स पूछना स्टार्ट हो गए. ओके सर, व्हेन वीपी गिरी आल्सो रिजाइंस, तो वो किसको रेजिग्नेशन देंगे? क्योंकि प्रेसिडेंट तो वही है, खुद को ही रेजिग्नेशन. हाँ क्या? क्योंकि प्रेसिडेंट तो वही है, खुद को ही रेजिग्नेशन स्पीकर को देंगे माय फ्रेंड. जो बचा हुआ है वही तो. क्या हो गया यार, क्या हो गया यार, सब ठीक है कि नहीं? और प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के ईसीआई, व्हेन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन ईसीआई किसको प्रेफरेंस देंगे? प्रेफरेंस मतलब, प्रेफरेंस मतलब क्या? दोनों करेंगे माय फ्रेंड्स. एक काम है तुम्हारा, जितने इलेक्शन है सारे कंडक्ट करोगे. ऐसे थोड़ा कि हरियाणा में करोगे तो महाराष्ट्र में नहीं करोगे. दोनों काम है तुम्हारा, करो. बताओ तो, जिसका टाइम हो गया करो. ठीक है माय फ्रेंड्स. ओके. चलो यार बस करो. थैंक यू. यस, लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस. ओके. ओके. चलो, अब नो मोर डाउट्स. थैंक यू फॉर द रिक्रिएशन. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. Is it getting stuck? I think refresh करो. All right. Concentrate now. So अभी story complete नहीं हुई my friends. Okay. So let's have the process back. So we have indirect election. Why is it this called as indirect election? Indirect election because ये election electoral college करता है. Okay, very good sir. और क्या है sir? Sir, आपने एक और बात बोला था. आपने बोला था ये proportional representation है.
Yes or no, my friends? ये proportional representation. All right. So इसको proportional representation क्यों बोलते हैं? To understand why is this called as proportional representation, you have to understand something else. Now, to understand, previous students kindly don't disturb the class. Okay, just focus. नहीं और दिल करा तो जाके देखो Big Boss start होने वाला. Okay, don't disturb the class. Okay. Now, just आराम से सुनो, ध्यान से, तुम्हारा भी रिवीजन हो जाएगा, फायदा देखो. Okay. Now, to understand the elections, okay, of a normal election, this is the normal election. Okay, the normal election is called as FPTP. Say the word. What is the word? FPTP. First past the post system. Okay, what is this called as? First past the post system. This is the normal election, my friends. मेरी बात समझो. Normally, when we go for elections, okay, our method of elections is called as first past the post system. कैसे होता है? 4 candidates example ले लेते हैं. A, B, C and D. Voter number one comes and puts his vote. The vote is put on A. The moment I put the vote on A, B, C and D are rejected. Yes or no? They are rejected. Yes or no? मैंने मोदी जी को वोट दिया तो बाकी जितने कैंडिडेट्स का नाम था वो ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड है. Yes or no? Right? Voter number 2 comes. It says I elect B. ध्यान से सुनना, my friends. Okay? तो automatically A, C and D are rejected. Do you agree on this? Very good. Voter number 3 comes. Okay? Again A cross 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 cross. Okay? This is cross cross and so on and so forth. Yes or no? Now, तो यहां पर दो ही चीजें, either I am accepting somebody or I am choosing somebody or I am rejecting somebody. मान के चलते हैं, just giving an example, there are 100 voters. Okay, just मान के चलते हैं. Now A got, okay, I'm just giving an example. Okay, A got 40 votes, B got 30 votes, C got 20 votes, D got 10 votes. Who won the election? जल्दी आंसर दो. Who won the election? किसके घर में लड्डू? Victory is A. Yes or no? Why? Because he got the maximum votes. What did he get? He got the maximum votes. Yes or no? But what a shame it is. What a shame that the one who got the maximum votes does not enjoy the voting or the confidence of even 50% or half of the voters. किसी ने ये तो सोच लिया तुमने कि 40 लोगों ने तुम्हें सेलेक्ट किया है, ये कोई नहीं सोच रहा that 60 people have rejected you. Yes or no, my friends? What is democracy? Democracy is government by the people, of the people, for the people. भाई तुमने जो जीता वो पीपल के वोट के लिए, जो हमने रिजेक्ट किया हमारी कोई वैल्यू नहीं है. Yes or no, my friends? Beta, are you understanding a huge problem here? Yes or no? You got 40 supporting votes, but you are not looking at the 60 people who are rejecting you. So you are not the winner of this election. You are the best loser. You are the best loser. तुम सभी losers हो. Yes or no? Because तुम्हें 50% भी वोटिंग नहीं है, तुम्हारा स्क्रीनिंग मार्क्स ही नहीं, तुम कट ऑफ से नीचे हो. Yes or no? तुम सब लोग कट ऑफ से नीचे हो. हमारे यूपीएससी में होता है ना, कट ऑफ होता है ना कि सिर्फ बाजू वाले को हराना है. नो, बट तुम्हें कट ऑफ चाहिए ना, तभी तुम्हें प्रीलिम से पास करना है. यस और नो? सो देयर इज नो कट ऑफ हियर, एंड देयरफॉर माय फ्रेंड्स, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम इज सीवियरली क्रिटिसाइज्ड. व्हाई? बिकॉज़ इट एक्चुअली डज नॉट रिप्रेजेंट द ट्रू डिजायर्स ऑफ द वोटर्स. यस और नो? तुम मेरी बात मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? किसी को इस बात पे कोई ऑब्जेक्शन है? ओके, एवरीवन, एनीबॉडी हैज एन ऑब्जेक्शन? नो. बट मैं करूं क्या? ओके, हाँ, 100 करोड़ वोटर्स है मेरे पास. ओके, I want a simple method, okay, and I want an economic method, and I want a fast result. Yes or no? बात समझ में आया या नहीं? Yes or no? तो सर मेरे पास कोई चॉइस नहीं, लिखते जा रहे हो ना सब लोग, everyone is continuously writing. तो हमारे पास usual election method is FPTP method. What are the controversy regarding to this? Controversy regarding this, it does not represent the true desires of the voters. It is against the spirit of democracy. It does not count the rejected voters. Advantages: simple, economical, and fast. Cool? Everyone is cool? सबको समझ में आ गया? हो कि चले गए तुम? सब लोग हो या नहीं हो? ओके, हो. गुड. मुझे लगा चले गए तुम बिग बॉस देखने. ओके, राइट. Thank you. Now listen.
But now I don't like this. I don't like this method of election. Okay. Now this I don't like the elections method. Why? Because because why? It does not truly represent my desires of the voters. Okay. So for my head of the state, my presidential election, I don't worry about money. I don't worry about how difficult this process is. मुझे तो true representation, the true will of the voters check करना है. Yes or no? तो मैं अलग ही मेथड करूंगा. My method is called as quota method. What is this called as? Quota method. What is this called as? Both it out. What is the method? Quota method. What is quota method? Quota method is a formula. What is the formula? Formula is, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ. Total number of valid votes polled. Total number of valid votes polled. Polled मतलब जितने वोट डाले हैं. Okay. Divided by total number of positions जिनके लिए इलेक्शंस हो रहा है +1 क्या मैथ्स है. व्हाट डज दिस मीन? पहले प्रीवियस एग्जांपल में चले जाते हैं. जब हमने एफपीटीपी किया था तो एफपीटीपी मेथड में हमारे पास कितने वोटर्स थे? 100 वोटर्स. यस. कितने प्रेसिडेंट्स बनाने वाले हो तुम लोग? एक +1 दैट इज 50 +1 दैट इज 51. तो सर जब तक किसी एक कैंडिडेट को 51 वोट्स कम से कम नहीं आएंगे, he will not be accepted as the winner. तो पिछली बार था एफपीटीपी मेथड. एफपीटीपी मेथड में मुझे सिर्फ बाजू वाले को, अपने कॉम्पिटिटर को हराना था. I just had to destroy my competitor. Yes or no? No. Here I have to achieve a cutoff. What is the minimum number of votes that I have to get? I have to achieve quota. What is quota? Total number of votes polled plus total number of positions plus 1 plus 1. That is 100 upon 2 plus 1, 51. So I have to get 51 out of 100. Are you understanding this part? Friends, are you understanding this part? इसको 51 लिखकर मत आ जाना. Please understand the formula. For example, मैं तुम्हें बता देता हूँ. कभी-कभी तुम लोग कुछ है हमारे यहाँ पर, मैं समझ ही जा रहा हूँ. ओके, तो मैं चाहता नहीं हूँ किसी तरह की कंफ्यूजन हो. ओके, सपोज तुम्हारा कोई कंपनी है. ओके, एंड दिस कंपनी में 3 सेक्रेटरीज अपॉइंट होने. ओके, 3 चीफ सेक्रेटरीज अपॉइंट होने. तो हाउ विल बी दैट बी? तो 100 अपॉन 3 plus 1. Are you understanding? Plus 1. तो 100 अपॉन 4 plus 1. तो हमें कितने वोट चाहिए होंगे हर एक को? हमें मिनिमम क्या कोटा हो जाएगा? 26. तो 51 रट के मत बैठ जाना. ओके, इट इज टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड बाय टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस. अब क्योंकि हमारा प्रेसिडेंट एक ही बनाना है इसलिए हमने 1 डाला यहाँ पे. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, प्लीज कुछ रट के मत जाना. ओके, आई एम टीचिंग यू, एक्सपेक्टिंग यू टू बी शार्प इन दिस एग्जाम. बच्चे समझ में आ गया सबको? एवरीवन, तो मुझे क्या अचीव करना है? सर आपको कोटा अचीव करना है. ओके सर, मुझे बाजू वाले से कोई मतलब नहीं. आई हैव टू अचीव कोटा. वेरी गुड सर. एवरीवन हैज अंडरस्टूड. बट सर आप तो कुछ और ही समझा रहे थे, आप कुछ और ही समझाने लग गए. हाँ, वो मेरी गलती है. बताओ क्या मैंने समझाना था? मैंने समझाना था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. मैंने क्या समझाना था? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. वेरी गुड सर. आप ये समझाते समझाते कहीं और ही चले गए थे सर. सॉरी यार. ओके, मैं क्यों चला गया था? बिकॉज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को समझने के लिए कोटा समझना जरूरी था. सो व्हाट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन? So yesterday I subscribed. When your new start? Beta, this is, you can always look at the previous videos. Okay, we are continuing on the executing. You can join us over here itself. Okay. Now listen. So what is proportional representation? Start watching. Better, Subhankar, start watching previous videos, right? And then continue joining the live classes also. Do both of them simultaneously. All right. Now, what is proportional representation? Proportional representation is, अब देखो, FPTP, okay, में one voter has one value. Yes or no? So Siddharth goes for voting, I'll have one vote. Okay. My friend goes for voting, he also has one vote. Okay. My enemy goes for voting, he also has one vote. How sad? Okay. So we are all equal. Are you understanding this part? But in our method of the presidential election, every vote has been given a value which may or may not be the same. Say the word, which may or may not be the same. So sir, kaise? Can we repeat the electoral college? Who were the members of electoral college? There were 2 members. One was the member of legislative assemblies and the other ones were the members of parliament. Do you agree? Yes or no?
Yes. तो first we will calculate the value of an MLA's vote. किसके calculation करें? Value of MLA's vote. एक मैं बात मानते हो चलो. Okay, just understand this. Okay. So value of an MLA's vote के लिए हाँ वो elected members ही है, but अभी के लिए हम just simplifying the topic. Okay. So value of an MLA's vote हम कैसे करेंगे? Okay. Value of vote में just one second please. Okay, sorry. Okay, तो value of MLS वोट क्या करेंगे? बड़ा सिंपल सवाल. टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, मैंने क्या बोला? टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डिवाइडेड बाय द टोटल मेंबरशिप ऑफ और टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द विधानसभा ऑफ दैट स्टेट इनटू 1/1000. मैं क्या बोल रहा हूं? टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट divided by total membership of the Vidhan Sabha of that state, okay, into 1/1000. ये फॉर्मूला रट गया सबको फ्रेंड्स? ये रट गया? ओके. तो एक एग्जांपल ले लेते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल. ओके, मैं इसको ज्यादा टेंशन नहीं देना चाहता, इसको राउंड फिगर में देख लेते हैं. ओके, सो हमने एक राउंड फिगर में इलेक्शन सपोज यूपी ले लेते हैं. जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. ओके, तो हमने बोला यूपी का एक, मैं ऐसे बिल्कुल क्लियर बना. ओके, 1 करोड़ है. ओके, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग. ओके, सो 1 करोड़ है एंड टोटल मेंबर्स ऑफ द विधानसभा वहां पर इज 1000. ओके, आई एम जस्ट सेइंग दिस. ओके, इनटू 1/1000. थैंक यू आशुतोष. ओके, आपने मुझे बता दिया कि ये है, बट जस्ट फॉर द रिमेम्बरेंस आई एम जस्ट डूइंग इट. तो हर एमएलए का वोट वैल्यू विल बिकम 10. सबको समझ में आ गया? यस और नो? Everyone has understood, alright? तो हम लोग एक टेबल बनाते हैं. ओके, तो ऐसे ही आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि यूपी के पॉपुलेशन, ओके, यूपी के हर एमएलए का वोट का वैल्यू, हर एमएलए का, एवरी एमएलए का वैल्यू, वोट वैल्यू विल बी 10. ऑफ विच स्टेट? ऑफ उत्तर प्रदेश का. आर यू अंडरस्टैंडिंग? थोड़ी देर के बाद फिर से हम बिहार का करते हैं. सो अब हम बिहार का एमएलए का वैल्यू करते हैं. सो बिहार का पॉपुलेशन इज 50 लाख. ओके, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. ओके, और वहां पे भी देयर आर say 1000 members in the Vidhan Sabha, then it will be 50 lakh population divided by total membership into 1/1000. अब क्या हो गया? हर बिहार का एमएलए का वैल्यू कितना हो गया? 5. Are you understanding? Do you understand कि इस तरह से I can make an entire table. सबको समझ में आता जा रहा है? Okay, सब. So I'll take असम के हर एमएलए का वैल्यू लूंगा. Okay, and suppose इसका 2 है, right? इसका अरुणाचल का 1 है, and so on and so forth. Yes or no? Everyone has understood this, right? Got this point? Now the crucial part over here is, okay, now all the MLAs का वोट का वैल्यू थोड़ा डिफरेंट होगा. Yes or no? It will be slightly different. Okay, although we try and keep constituencies uniform, but it will be slightly different. Yes or no? Now मान के चलते हैं, okay, now मान के चलते हैं that now we have done all the states. I said all the states. या इसमें 2 और है. कौन है 2 और states? Delhi and Puducherry. सबको याद आ रहा है? Yes or no? Now I will calculate the value of all the MLAs of all the states plus Delhi and Puducherry. जो भी टोटल वैल्यू आएगी, okay, जो भी टोटल वैल्यू आती है, मैं उसको X नाम दे देता हूं. What do I call that? X. यहां तक समझ में आ गया? Friends, सबको समझ में आ गया? So I have calculated for everyone, every state, I total it, right? Now I calculate the value of an MP's vote. What do I calculate? I value the MP's vote. So what is this? The value of an MP's vote, member of parliament's vote, is X. What is X? What is X? Jaldi bolo. Value of all the votes of all the MLAs of all the states, right? This X divided by total strength of Lok Sabha plus Rajya Sabha. Okay, the total membership of Lok Sabha and Rajya Sabha. सबको समझ में आ रहा है या नहीं? Do you realize कि हर value, हर MP will have a same number?
Yes or no? But if anybody has any doubt, then ask me now. Anybody has any doubt, ask me now. Don't ask me again. Pura nahi again. Ask me what is the doubt. इतना टफ है नहीं यार. So UP, now I'll give you a reality example. Okay, let's have this, that UP ka MLA, every MLA has got 10, okay, as value of UP's members. Now everyone has understood this, right? Now 10 into, so you have 1,000 MLAs. Yes or no? You have 1,000 MLAs. Every member has got value of 10. उसी तरह से बिहार का है. Okay, suppose everyone has 5 and there are say 500 this, so 10 into 1,000 is 10,000. Yes or no? 5 into 500 is 2,500. Yes or no? ऐसे ही असम का वो करेंगे, suppose 3 into 20 or 3 into 200 is 600. Are you understanding? So what will I do? इस तरह से I will keep on going on, and finally all the states, okay, all the states का मैं इस तरह से add करता जाऊंगा, करता जाऊंगा, करता जाऊंगा, करता जाऊंगा, करता जाऊंगा, करता जाऊंगा. Are you understanding? Got this point? I will total it. That total is X. Okay. So now this is done with MLAs. ये states का काम खत्म. Okay. States का काम खत्म. Now I'll go to the members of parliament. I will take member of parliament. I will take this X over there. This is the total of all this. I will divide it by the total membership of Lok Sabha and Rajya Sabha. What is the total membership of Lok Sabha and Rajya Sabha? If you do it, it will be around 800. Okay. Then whatever value will come, I'll call it Y. I hope you're understanding. That Y is the value of each MP, of each member of parliament. Picture clear? अब समझ में आ गया? Everyone has understood this part or not? Absolutely clear. Okay. Just for the sake of your remembrance, okay, ये बहुत बड़ा नंबर आता है. Okay. The total value कर दूं ना मैं, अगर सारे, okay, total value कर दूं मैं of Indian presidential election, इंडिया में presidential election जो रामनाथ कोविंद साहब के टाइम था, okay, president election, अगर मैं सारे MLAs, all MLAs और all MPs के value, all MPs का value total कर दूं ना, अगर मैं total absolute कर दूं, तो that will become 10,98,903. बात समझ में आ गया? This is the total value of the votes in India for a presidential election. Are you understanding? Just for an example, UP. Okay, for example, if I look at a UP का vote का value, हर MLA का वो value is 208. MP का हर member of parliament का value is 708. अगर हमारी calculations है तो तुम आराम से करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा. बात समझ में आ गया? All okay? बच्चे तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बेटा ये तुमको बुक से पढ़ोगे ना बेहोश होके गिर जाओगे. बुक में लिखा ही नहीं कुछ भी. Okay, they won't understand this. Everyone has understood? कोई doubt है? Please ask me right now. Put it in the doubt session. I don't mind. But we will not take a step ahead जब तक this part is not clear. All right. पूछ लो मैं बच्चे. भूमिका मत बांधो. Straight go for the doubts. चलो hurry up. Let's not waste time. Any doubts? अब इससे सिंपल भाई कर सकता है कोई तो मुझे पता नहीं. तो स्कूल लेवल कर दिया मैंने, बट फिर भी किसी को कोई डाउट है प्लीज पूछो, जल्दी से पूछो. सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन एमपी's वोट? अभी तो लिखा मैंने बच्चा 708. लोकसभा प्लस राज्यसभा इलेक्टेड मेंबर्स वो एंटायर. अरे बोला ना बेटा इलेक्टेड मेंबर्स है ना, इलेक्टोरल कॉलेज में इतने अच्छे से रटवाया मैंने यार. अभी तो लिखवाया मैंने बच्चे. ऐसा काम चलेगा तुम्हारा. ओके समझ में आ गया तुमको? एवरीवन इज क्लियर? चलो आगे चलते हैं बच्चे. एक बात बताऊं, लाइफ में ओके आईएएस एग्जाम में लाइफ में भी सो शार्प हो जाओ माय फ्रेंड. सुनना, सोचो, सुनना, ईयर्स. ओके जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनो, मैं जो बोल रहा हूं. राइट, अंडरस्टैंडिंग दिस. ओके स्टोरी वापस चलते हैं. ओके एक और बात, वी आर लुकिंग एट इनडायरेक्ट इलेक्शन. इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है सर इलेक्टोरल कॉलेज होता है. हाँ सर, यहाँ तक समझ में आ गया सर. ओके और क्या समझ में आ गया तुमको? सर हमको ये समझ में आ गया कि हमको फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम नहीं करना, हमको कोटा करना है. वेरी गुड सर. और क्या समझ में आ गया?
सर हमको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मिलने वाला है। मतलब सर क्या मतलब? सर ये कि एक वोट का मतलब एक नहीं होता है। Every vote has a value, and that value is dependent upon the percentage, that is dependent on the population where that MP or sorry MLA comes, and then you also represent calculated for the member of parliament. Everyone has understood यहाँ तक? Yes, very good sir. लेकिन सर आप तो कुछ और ही पढ़ा रहे थे। अब मैंने क्या गलती कर दी? गलती मैंने ये की कि मैंने तुम्हें ये बताया था कि फाइनली था single transferable vote. So I taught you indirect election, I taught you proportional representation, last is single transferable vote. Okay, now listen. तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या है? अब सर फिर से चलते हैं इलेक्शंस करने। ओके, मेरी बात ध्यान से सुनो। सो वी हैव इलेक्शंस अगेन, राइट? सो देयर आर 4 कैंडिडेट्स A, B, C and D. Very good sir. So voter number 1 comes. Okay, so voter number 1 does not select somebody and reject somebody. ये नहीं करता वो सर। ये नहीं करेगा तो क्या करेगा सर? वो रैंकिंग करेगा। क्या करेगा? रैंकिंग। यूजुअली ओके वो एक सेलेक्ट एंड रिजेक्ट करता है। ओके, ही विल गिव हिज प्रेफरेंस। क्या मतलब? सपोज वो बोले कि A इज माय फर्स्ट प्रेफरेंस एंड B इज माय सेकंड प्रेफरेंस और C इज माय थर्ड प्रेफरेंस एंड D इज माय फोर्थ प्रेफरेंस। ओके, यूजुअली प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में सिर्फ 1 और 2 प्रेफरेंसेस दिए जाते हैं। ओके, इससे ज्यादा की जरूरत पड़ती नहीं, लेकिन देने को दे दो। ओके, सो जस्ट फॉर आवर एग्जांपल वी आर रिमेंबरिंग फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, फोर्थ प्रेफरेंस। सबको समझ में आ गया? वेरी गुड सर। सो वोटर नंबर 2 आएगा, वो बोलेगा सपोज ही सेज फर्स्ट प्रेफरेंस, this is my second preference, this is my fourth preference, this is my third preference. Voter number 3 comes, he says no, this is my first preference, this is my second preference, this is my third preference, this is my fourth preference. In other words, we are not selecting somebody and we are not rejecting somebody. Yes or no? Yes or no, right? We are ranking you. Very good sir. चलो अब क्या होगा सर? सर पीछे से भूलना मत। okay, first we will do the first round of counting. The first round of counting में we will count only the first preference votes. We will count only the first preference votes. Okay, तो मान के चलते हैं ऐसे, just for ease of understanding, let's see there are 10 voters. Say the word. How many there are? There are 10 voters. तो 10 में 1 2 ऐसे मैं सिर्फ फर्स्ट वालों को गिनता हूँ। Okay, and I noticed that 4 people have given A first preference votes. 3 have given first preference votes to B. 2 have given first preference votes to C, and D has given first preference only by 1 voter. Who has won the election? Jaldi bolo. Who has won the election? Jaldi bolo. Jaldi bolo. Jaldi. अरे क्या बात करो? ये तो मेरे previous students है। ये शाने लोग previous से मेरे। Yes or no? Why? Because nobody has achieved quota. What is the quota here? Total number of votes divided by 1 plus 1 plus 1, that is 6. So nobody achieved quota. Yes or no? Nobody achieved quota, right? So he got the maximum number of first preference votes, but he did not achieve quota. Yes or no? Sir, तो जीता कौन? Sir, कोई नहीं जीता, कोई भी नहीं जीता. Nobody won this, right? But I know something here, okay? That somebody got minimum votes. Who got the minimum votes? Everyone. Who got the minimum votes? This man. Now we will eliminate him. Say the word. What will we do him? We will eliminate him. We will kick him out of the competition. Okay. We will throw him out of the competition. So who is out of the competition? D is out of the competition. Who is got out of the competition? D is out of the competition. Okay. Who has won? Nobody has won. Okay. But who has completely out of the competition? The completely out of the competition is D. Very good, sir. So just for your recap. So A had got, अब ध्यान से सुनना मेरे पास, A has got 4 first preference votes, B has 3 first preference votes, C has 2 first preference votes, और D का है? D को मैंने बाहर फेंक दिया। D बोला तू बस पकड़ कर चले जा। Okay, you're out. Are you understanding? You are eliminated. So when D was going, okay, when D was leaving the house, okay, or leaving, so I said D अपना वोट मुझे देकर जा। Okay, leave your vote here. Alright, so D बेचारा ऐसा sad होकर, okay, he left ऐसा, he's crying, okay, but he left his vote here. Now I'm showing you his vote, okay, I'm showing you his vote, okay. Why is this called as D's vote? इसको D का वोट क्यों बोलते हैं? Because किसी intelligent voter ने इसके D के आगे number 1 लिखा था. That is why whose vote is this? This vote is D's vote. Yes or no? Where is D now? D has gone outside house.
But this is called D's vote. Why is it called D's vote? Because somebody said that D is my first preference. That is why D got 1st preference. Yes or no? Yes or no? अब जिस भी वोटर ने इसको D को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था उसने कहीं पर नंबर 2 भी तो लिखा होगा. Yes or no? I hope you understand. He must have written 2 also. Now just assume he has left 2, written 2 here. So who is the second preference vote? A. Now D तो चला गया. Now whoever this voter had given second preference, I will transfer it to him. I will transfer it to him. Are you understanding this part? Friends, are you understanding this part? Everyone has understood? Okay. Everyone has understood. Just for the ease of understanding, let us assume that D had 2 votes. I'm just assuming, okay, just for understanding. Okay, I'm just assuming D had 2 votes. And in both these votes, right, D was given first preference and A was given second preference. So how many votes will I transfer to A? How many votes will I transfer to A? 2 votes. Very good. Okay, so first round, A got how many votes? 4 votes. Yes or no? First round, A got how many votes? 4 votes. And 2 votes have come from transfer. Okay, so now I count again. This time I count the 4 votes plus the transferred votes. So 4 plus 2 becomes 6. Congratulations, Mr. A, you have just achieved quota. Congratulations, you are the next president of India. Are you understanding this part? Are you understanding? So, dear voter, how many times did you vote? Sir, I voted only once. But my friends, that vote was transferable. Hence called as single transferable vote. Are you understanding this part? Everyone has understood this part. Yes or no? So in India, okay, all presidents have been elected by first round. Okay, by first round. Okay, all the presidents except President V.V. Giri, who was elected on the basis of second round of counting. That is on the basis of transferred votes. Are you understanding? Rest all the presidents were elected on the basis of first itself. Are you understanding? Also, please remember, Neelam Sanjeva Reddy sir, when he was elected the president, he was elected unopposed. He won without any opposition. Are you understanding this part? Yes or no? Everyone has understood? All okay? All right, my friends. I think you have सोम भारद्वाज 2 votes कैसे? 2 votes कैसे? हम मान के चले कि D has got 2 votes. Just for our example, that D has 2 votes और दोनों में second preference is A. All right. Then we transfer to 2. Are you understanding? Just assuming, just for the ease of understanding. Okay. Everyone has understood, right? So my method of election is indirect election by proportional representation and single transferable vote. Okay. Whoever achieves quota, we will declare him as winner. Everyone is clear? I think we'll continue. ज़्यादा हो गया? Okay, we'll continue this tomorrow, right? We'll carry on this part. I hope तुम्हें major technicalities तो समझ में आ गई है. बाकी सब facts we'll do it tomorrow, right? Thank you. That should be enough. Thank you. Good night.